चलो आगे अब नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे स्फेनोप्सिदा में कैलामिटेल्स ऑर्डर के मेंबर कैलामाइट्स की। तो members of this order Calamites originated in the Upper Devonian. They were the most abundant Carboniferous के टाइम पे ज़्यादा abundant थे और extinct हो गए थे early Triassic तक. They include perhaps both herbaceous and arborescent forms, but most of these were trees. Their rhizomatous and rhizome was very much like the tree trunk and bore whorls of leaves at nodes. Calamiteals is the best known group of the fossil sphenopsids as many interesting features. तो सबसे पहले अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो सब डिवीजन स्फेनोप्सिडा, ऑर्डर कैलामिटेल्स और फैमिली कैलामिटेसी. स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा जाए, कैलामाइट्स वॉज अ लार्ज हाईली ब्रांच ट्री, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एन एस्टिमेशन ऑफ इट्स हाइट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेगमेंट्री नेचर ऑफ द फॉसिल. इट अपीयर्स टू अटेन द हाइट ऑफ 20 to 30 मीटर्स तक का है. The internal diameter of stem was 40 centimeter. The plant was differentiated into underground rhizome, root and aerial shoot. We can easily see it clearly in a diagram. Rhizome, aerial shoot और ये इसके consecutive branches. Let's talk further. The underground rhizome was horizontal and differentiated into nodes and internodes, and each node will have adventitious roots present होंगी. The arborescent aerial shoot of the plant has central axis bearing lateral branches, and central axis developed from the buds present at the nodes of the horizontally growing rhizome. इसमें वेरिएशंस के हिसाब से अलग अलग जेनरा हैं, यूकेलामाइट्स, कैलामिटीना और स्टाइकोकैलामाइट्स करके. वो इसके अलग अलग ब्रांचिंग पैटर्न पे डिपेंड करेंगे. फिर द लीव्स ऑफ कैलामाइट्स आर प्लेस्ड इन टू फॉर्म जेनरा में एन्यूलेरिया एंड एस्टेरोफाइलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स के बेसिस पे. लीफ के शेप के बेसिस पे दो जेनेरा हैं, एन्यूलेरिया और एस्टेरोफाइलाइट्स. Annularia was up to several centimeter long, staphulate और deltoid type होते हैं, whereas एस्टेरोफाइलाइट्स आर वेरी स्मॉल और लीनियर फॉर्म में होते हैं. तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट जेनराज ऑफ कैलामाइट्स. इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. पिथ कास्ट ऑफ कैलामाइट शो रिजेस और ग्रूव्स corresponding in number with the protoxylem stands. जितने प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स होते हैं उतने पिथ से ग्रूव्स निकल रहे होते हैं. अ सेंट्रल पिथ कैविटी वॉज प्रेजेंट इन इंटरनोड बट द पिथ वॉज सॉलिड होता है इसमें पिथ का नेचर. तो डैट इज़ अ स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर जिसका हम डायग्राम देखेंगे इधर. दिस इज़ द आउटर कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम एंड सेंट्रली लोकेटेड पिथ. इट इज़ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कैलामाइट्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. A carinal canal representing the protoxylem was present in each vascular bundle. The metaxylem was centrifugal होती है and consisted of scaliform and pitted tracheids. The secondary xylem was composed of radial rows of tracheids with scaliform pittings or with multi-serried circular bordered pit walls. उसकी radial walls जो होती हैं वो pitted होती हैं. Interfascicular rays traverse the secondary xylem. A number of leaf traces diverge from the main vascular cylinder. ठीक है. The cortex was composed of thin walled. जो कॉर्टेक्स में कैसे सेल्स आते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल आते हैं. द ओल्डर ब्रांचेस वर सराउंडेड बाय, जितने भी ओल्ड हो जाते हैं पार्ट्स दे वर सराउंडेड बाय द पेरिडर्म. फ्रूटिफिकेशन इसमें अलग अलग तरह का सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रोबिलाई हैज़ बीन फाउंड एंड प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ कैलामिटियन टाइप ऑफ प्लांट्स. इसमें कैलेमोस्टाइका, पैलेओस्टाइका, सिंगुलेरिया आते हैं कॉमन टाइप्स में. तो सबसे पहले हम कैलेमोस्टाइका को स्टडी करेंगे. द कैलामाइट कोन कैलेमोस्टाइका वॉज कॉम्पैक्ट होता है यानी कि रिजिड टाइप, मेजरिंग अप टू 3 to 4 centimeter in length and up to 7.5 mm in diameter. It was composed of alternating whorls of sterile bracts होते हैं and sporangiophores. There were 12 sterile bracts in a whorl which were partially fused in a base, whereas there are only 6 sporangiophore in a whorl. The sporangiophore were placed at right angles पे placed होते हैं to the conical axis and in the midway between the two whorls of sterile bracts. Distal parts of sporangiophore was
एक्सटेंडेड इनटू अ पैल्टेट डिस्क के फॉर्म में एक्सटेंड होता है, विच बोर 4 स्पोरेंजियोफोर इन इट्स अंडर सरफेस। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में they were heterosporous with microsporangia in its parts cone and megasporangia in the older other part. A few cones were distinctly, कुछ cones कैसे हो जाएंगे, homosporous हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें पैलेओस्टेकिया, वॉज सिमिलर टू कैल्मोस्टेकिया की तरह ही होता है जनरल अपीयरेंस में, बट इट्स स्पोरेंजियोफोर्स आर प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री के एंगल्स पे प्लेस्ड होते हैं। द ब्रैक्स ऑफ द वर्ल्ड यूजली ट्वाइस द नंबर ऑफ स्पोरेंजियोफोर इन द वर्ल्ड, ब्रैक्स के नंबर दुगने होंगे एज कम्पेयर टू स्पोरेंजियोफोर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस कोन वॉज द course of the vascular bundle supplying the sporangiophore traverse the cortex of the conical axis almost midway between two successive whorls. Bracts and then turn downward forming a loop-like structure बनाते हैं इसमें। तो this is the characteristic feature of the Paleostachya. Next one is the Singularia. The structure of Singularia was markedly different from Calmostachya से बहुत डिफरेंट होता है इसका स्ट्रक्चर। उसमें हमने देखा था कि सारे 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली लगे होते हैं, दैट इज़ अ कैलेमोस्टैका। और ये उसका डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ट्रांसवर्स सेक्शन का। नेक्स्ट इज़ दी पैलेओस्टैकिया, इसमें 45 डिग्री के एंगल पे ब्रैक्स और वर्ल्स लगे हुए होते हैं। इसका ये मतलब सेक्शनल डायग्राम भी है, इंटायर स्ट्रोबुलस का डायग्राम है और एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है। तो ये डायग्राम्स और लेबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका लास्ट पार्ट आ जाता है सिंगुलेरिया वाला। तो ये मतलब जो सिंगुलेरिया होता है इसमें फ्रूटिफिकेशन ये पैलेओस्टैकिया और कैलेमोस्टेकिया से काफ़ी अलग होता है। द स्पोरेंजियोफोर सिंगुलेरिया वर एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ब्रैक्स अबव विद नॉट विद वर्ल्स ऑफ ब्रैक्स अबव नॉट विद द वर्ल्ड बिलो। ऊपर से अटैच होता है, नीचे से अटैचमेंट नहीं होता है इसमें, जैसे कि क्लैमोस्टेकिया पैलेओस्टेकिया में देखा जाता है। तो इसमें जो स्पोरेंजिया होते हैं ऊपर की तरफ से अटैच होते हैं, ना कि नीचे की तरफ से। दे वर पेंडेंट स्पोरेंजिया फॉर ईच स्पोरेंजियोफोर। द टू अदर कोन जेनरा ऑफ द फ्रूटिफिकेशन विज Metacalamostakia and Meso also had similar structure, except that in Metacalamostakia 1 and the 2 sporangia are present on each sporangiophore.